everyone. Dear students, if you remember last time we had started a chapter of your Moments book, Rapid Reader, chapter 3, Ishwaran the Storyteller. And I think we read till the second page of it about Ishwaran, that how he recites the story, whatever he narrate an incident, it was really very आर्टिस्टिक, यानी वो जो भी इंसिडेंट बोलता था इस तरह से डिस्क्राइब करता था कि वो बिल्कुल हमारे सामने एज ए लाइव इट वुड रिप्रेजेंटेड. ओके, ही वॉज ऑल्सो अ गुड कुक एंड ही यूज टू लिव विद हिज मास्टर नेम महेंद्र, हु वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन हायरिंग अ firm. Okay, means he used to look the construction site. So we read about him, that how he used to who was Mahendra, his description, and how he used to live with his master Mahendra. And one of the incident which we had read last time was about the tree, an uprooted tree. Okay, so let us continue with the chapter now to the next page. Now here he is talking about a new incident, though it is a real one or no, but the way he is describing this incident is really very attractive and very artistic. Okay, he was master in creating suspense. So the way he had saw fallen tree on the highway, and he used to narrate it in a very different manner. So now here we are going to read the story of the elephant that turned wild. ओके, तो अब ये जो इंसिडेंट बताने हम जो पढ़ने वाले हैं उसको कितना आर्टिस्टिकली ये डिस्क्राइब करता है. ठीक है, सो दैट थिंग वी आर गोइंग टू रीड हियर नाउ. नाउ हियर ही सेज द प्लेस आई केम फ्रॉम इन इज़ फेमस फॉर टिम्बर. तो वो कहता है कि मैं जहाँ से आया हूँ वो जगह टिम्बर, इट्स काइंड ऑफ वुड, इज़ फेमस फॉर that thing. Ishwaran would begin. Now he starts his story. There is a richly wooded forest all around. यानी कि हर तरफ घने जंगल है और अच्छे वुडेड फॉरेस्ट है, बहुत मोटे मोटे तने वाले पेड़ हैं. The logs are hauled on to the lorries by elephants. Now you would have seen that जंगल में logs यानी जो पेड़ों को काटने के बाद जो उनका बड़ा सा तना होता है उनको हॉल्ड यानी लॉरीज, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, उसमें रखने के लिए एलिफेंट्स की मदद ली जाती है. वो अपने ट्रंक से उसको होल्ड करते हैं और लॉरीज में लोड करते हैं. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट. बीस्ट मीन्स वाइल्ड एनिमल्स. ओके, सो हियर ही इज टॉकिंग दैट दे आर ह्यूज वेल फेड. वेल फेड यानी अच्छे खाते पीते स्ट्रॉन्ग एलिफेंट्स. When they turned wild, even the most experienced Mahavat is not able to control them. Mahavat, you know, who takes care and controls the elephant. तो वो कहता है ईश्वरन कि जब वो वाइल्ड हो जाते हैं यानी गुस्से में आ जाते हैं तो उनको कोई भी कितना भी ट्रेन महावत क्यों ना हो वो उनको नहीं कंट्रोल कर सकता है. आफ्टर दिस प्रोलॉग, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. So after this prologue मतलब introduction of the elephants, Ishwaran would launch into means he starts into an elaborate means detail in the description, anecdote involving an elephant. तो अब ये elephant से related कोई इंसिडेंट सुनाने जा रहा है. वन डे अ टस्कर escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. One day a tusker here means male elephant. ठीक है, he escaped from the timber yard, जहाँ पर इनको रखा जाता है, बांधा जाता है टिम्बर यार्ड, वहाँ से वो भाग जाता है. ठीक है, एंड बिगेन टू रोम अबाउट यानी इधर उधर वो घूमने लगता है. ठीक है, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, स्टैम्पिंग का यहाँ पर पैरों से रौंदना. ठीक है, तो अपने पैरों से बुशेस को यानी झाड़ियाँ जो भी उसके पे आ रही है उनको रौंदते हुए. टियरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स यानी जो बेल होते हैं, ठीक है, बेल वाले पौधे या पेड़, उनको तोड़ता हुआ और पेड़ों के
टहनियाँ तोड़ता हुआ वो आगे बढ़ रहा है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। आपको पता है कि एक एलिफेंट जब वो पागल हो जाता है, नॉट एक्चुअली पागल मीन्स व्हेन इट टर्न्स वाइल्ड, हाउ इट बिहेव्स, वो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरन वुड get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant। यानी ईश्वरन जब कहानी सुनाता है तो वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि जैसे कि वो खुद खड़ा होकर किस तरह से हाथी ज़ोर ज़ोर से अपने पैरों से स्टैम्प करते हुए चल रहा था, इधर उधर घूम रहा था, तो वो खुद अपने पैरों से इस तरह से इमिटेशन यानी इम्यूलेशन यानी करके बताता है, एक्शन करके बताता है कि वो एलिफेंट किस तरह से सब चीज़ें रौंदता हुआ या तोड़ता हुआ जा रहा था। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ टाउन। द एलिफेंट जो था ही रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ टाउन। आउटस्कर्ट्स मतलब जो बाउंड्री होती है, ठीक है, आउटर एरिया उसको कहते हैं। तो वो गांव के आउटस्कर्ट्स से बाहर चला जाता है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक। फेंसेस यानी जो बाउंड्री बनाई जाती है, ठीक है, वॉल्ड बाउंड्री होती है, जनरली या तो किसी लकड़ी से बनाते हैं या ईंटों की दीवार या इस तरह से हल्की फुल्की एक बाउंड्री होती है, तो उनको उस बाउंड्री को तोड़कर जैसे कि माचिस की तीलियों से बनी हुई हो और उसको तोड़ के वो जा रहा हो, इतना पावरफुल वो फेंसेस को तोड़कर आगे बढ़ता है। ही वुड कंटिन्यू। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes। तो जो पागल हाथी है वो उस जंगल से होता हुआ बाहर रोड तक आ जाता है और वहाँ पर जितनी भी स्टॉल्स यानी दुकानें लगी हुई थी फ्रूट्स की, ठीक है, पॉट्स की और क्लोथ्स कपड़ों की, सबको वो तोड़ देता है, स्मैश कर देता है। पीपल रैन हेल्टर एंड स्केल्टर इन पैनिक। हेल्टर एंड स्केल्टर यानी इधर उधर डर के मारे भागना, ठीक है। तो जब वो इस तरह से देखते हैं पागल हाथी को तो डर के मारे वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। सो अब वो ये जो एलिफेंट है ये दौड़ता दौड़ता स्कूल के ग्राउंड में एंटर करता है, ठीक है। एंड चिल्ड्रन वर प्लेइंग एट दैट टाइम। बच्चे वहाँ खेल रहे थे। एंड ही ब्रोक थ्रू द ब्रिक वॉल यानी ईंट की दीवार को तोड़कर वो स्कूल के ग्राउंड में एंटर करता है। ऑल द बॉयज़ रैन इन टू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लासरूम के अंदर दौड़ जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा टाइट बंद करते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड, बीस्ट हियर इज दैट एलिफेंट, ओके। ग्रंटेड मतलब जोर से आवाज़ निकालना, ठीक है, ट्रम्प साउंड मेड बाय द एलिफेंट्स, यू नो। एंड वॉन्डर्ड अबाउट और इधर उधर वो ग्राउंड में घूमने लगता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, यू नो फुटबॉल गोल पोस्ट जहाँ पर गोल के लिए डाला जाता है फुटबॉल को, इजंट दैट, उसको तोड़ देता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, जहाँ पर वॉलीबॉल नेट ऊपर लगी हुई थी उसको तोड़ देता है वो। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, यानी कि वहाँ पर जो पानी का ड्रम रखा हुआ था उसको किक मारकर उसको भी नीचे गिरा देता है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, यानी वहाँ पर जो छोटे पेड़ वगैरह पौधे वगैरह उगा रखे थे वो भी सारे वो क्रश कर देता है, स्मैश कर देता है, ठीक है। नाउ इन दिस वे ही वॉज डिस्ट्रॉइंग ऑल द थिंग्स ओवर दैट वर प्लेस्ड इन दैट प्ले ग्राउंड। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। तभी सारे टीचर्स जो होते हैं वो स्कूल के टेरेस पर चले जाते हैं और वहाँ से हेल्पलेसली, यानी वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बस देख रहे थे कि वो एलिफेंट क्या क्या हरकतें कर रहा था। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। नॉट अ सोल बिलो यानी एक भी बच्चा या एक भी बंदा वहाँ पर ग्राउंड पे नहीं था। सब या तो रूम में बंद हो गए और बाकी जो थे वो सारे टेरेस पे चले गए थे और वहाँ से ऊपर से वो सारा ये सब कुछ देख रहे थे। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, सारी सड़कें सब कुछ खाली। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपेयर्ड। इनहेबिटेंट्स यानी ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ गांव में रहने वाले सारे लोग जैसे गायब हो गए हो। इस तरह से उस हाथी के दहशत से वहाँ पर सब कुछ सन्नाटा छा जाता है। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट
टाइम, मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ता था। कौन कह रहा है ये? ईश्वरन। ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, यानी वो भी टेरेस पे टीचर्स के साथ था, जो 2-3 थोड़े बहुत बच्चे थे उनके साथ ये भी था, और वो सारा ये ड्रामा उस एलिफेंट का देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, यानी पता नहीं मुझे अचानक से क्या सूझा। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन, यानी मैंने एक टीचर के हाथ में केन यानी डंडा था वो लिया और सीढ़ियों से नीचे उतरा और ओपन इनटू द ओपन यानी उस ग्राउंड में जाकर वहाँ जाकर पहुँच गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मेनेसिंगली swung a branch of a tree which it had in its trunk. इट मीन्स वो जो एलिफेंट है वो जोर से फिर से ग्रंटिंग साउंड निकालता है, ठीक है, और swung a branch of tree which उसके पेड़ का जो तना था, ठीक है, उसको तोड़कर इधर उधर वो फेंकता है, जैसे कि वो अपना गुस्सा शो कर रहा हो। मेनेसिंगली यानी इन अ डेंजरस वे, बहुत ही डरावने तरीके से। इट स्टैम्प इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, यानी उसने अपने पैर को इतनी ज़ोर से थंप किया, स्टैम्प किया कि बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ गई। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, वो बहुत ही डरावना लग रहा था उस समय हाथी। बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन फिर भी ईश्वरन जो है वो बहुत हिम्मत करके उसकी तरफ बढ़ता है। स्टिक इन हिज हैंड, उसके हाथ में वो स्टिक है ही है। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, यानी आसपास के जो घरों पे, जो अपने घरों की छतों पे थे वो सब भी, और जो जो देख रहे थे उस हाथी को, वो सब भी देख रहे थे कि किस तरह से बच्चा क्या कर रहा है। हिप्नोटाइज यानी बिना हिले डुले, बिल्कुल अटेंशन से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, रेड आइड यानी गुस्से से। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, यानी वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, ईश्वरन की तरफ। कौन? एलिफेंट। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली, वो अपना ट्रंक जो होता है ना, सूंड जिसको हम कहते हैं, उसको ऊपर करता है और फिर से ज़ोर से ट्रम्पेट की साउंड निकालता है। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ड इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, तो जैसे ही उसने अपनी सूंड ऊपर की, मैं तुरंत उसके पास भागा और उसके पैर के बीच वाले थर्ड टो नेल, नाखून पर जोर से उस लकड़ी से मैंने हिट किया उसको। द बीस्ट लुक स्टर्न फॉर अ मोमेंट, देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, तो वो जो बीस्ट यानी वो जो एलिफेंट था, जैसे ही उसके नाखून पे हिट किया वो बिल्कुल स्टर्न यानी एकदम शांत खड़ा हो जाता है, ठीक है। देन इट शिवर्ड, और फिर वो कांपने लगता है और वहीं पर कोलैप्स्ड यानी नीचे गिर जाता है, एकदम धड़ाम से गिर जाना, फेल डाउन सडनली, इट कोलैप्स्ड। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, अब यहाँ तक बोलकर वो अपनी कहानी को वहीं छोड़ देता है। एंड गेट अप मम्बलिंग, गेट अप मम्बलिंग यानी फिर वो अपनी जगह से उठता है, और मम्बलिंग यानी बुदबुदाते हुए, धीरे से कुछ बोलना। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मैं वापस आऊँगा, पहले मैं गैस लगा दूँ और खाना गर्म कर दूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, और महेंद्र जो उसकी कहानी बिल्कुल ध्यान से पूरे अटेंशन से सुन रहा था, वो उसी स्टोरी में जैसे कि डूबा हुआ था, एंड ही वॉज इन सम कन्फ्यूजन एट दैट टाइम, ठीक है। वैन ही रिटर्न ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट वे, जब वो वापस रिटर्न होता है, ठीक है, तो when he returned ईश्वरन would not pick up the thread of the story right way, वो कहानी को उसी पॉइंट से शुरू नहीं करता है। महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending, यानी जब वो रिटर्न होता था काम करके और जब उसको बाकी की कहानी सुनानी होती थी, तो महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ता था कि जो कहानी का कंक्लूजन है, कहानी का जो एंड है, क्या हुआ, वो अभी तक बाकी है। वेल, फिर वो कहता है अ वेटरनरी डॉक्टर मतलब जो जानवरों का डॉक्टर है, वो समन्ड
टू रिवाइव द एनिमल। फिर जानवरों के डॉक्टर को बुलाया जाता है उसको रिवाइव यानी वापस से उसका इलाज करने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, श्रग का मतलब अपने कंधे उचकाना, ठीक है, कंधे जो होते हैं उनको उचका कर बोलना। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल, यानी 2 दिन के बाद उसका इलाज और वो वापस से ठीक हो गया तो उसको जो महावत था केयर टेकर ऑफ द एलिफेंट वो वापस से उसको जंगल में लेकर जाता है। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तो महेंद्र जो है वो ईश्वरन से पूछता है कि तुमने कैसे मैनेज कर लिया, उस जंगली जानवर को कैसे कंट्रोल में कर लिया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जैपनीज आर्ट आई थिंक सर। तो वो कहता है कि ये कराटे का एक टेक्निक है जिसको जूजित्सु कहते हैं, ठीक है। ये एक जैपनीज़ आर्ट है कि अगर आप किसी के वहाँ पर नेल पर मारते हो तो उसके नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, ठीक है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वर रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। एक भी दिन नहीं बीतता था जब वो अपनी कहानी नहीं सुनाता था, और कहानी में पूरा एडवेंचर हॉरर और सस्पेंस रहता था, यानी हर कहानी रिपीटेड नहीं होती थी और जब भी वो नई कहानी सुनाता था तो हमें बोर नहीं होता था। ओके, महेंद्र वुड नॉट फील बोर विथ सच अ एक्साइटमेंट एंड एडवेंचरस स्टोरी ही यूज्ड टू स्पीक। नाउ वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट, यानी कि वो कहानी का भले कोई तुक हो या ना हो लेकिन महेंद्र उस कहानी को सुनने में इंजॉय करता था। ईश्वरन सीम टू Mahendra enjoyed listening to it because of its inimitable way in which it was told. It means महेंद्र उसकी कहानी को इसलिए इंजॉय करता था क्योंकि वो जब कहानी बोलता था तो अपने हाथों से मतलब अपने बॉडी से पूरा एक्शन करके वो बताता था। He used to imitate that actions. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter. यानी यूँ सोच लो कि टीवी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी महेंद्र को, सारा एंटरटेनमेंट वो ईश्वरन कर देता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। तो एक बार सुबह जब महेंद्र उठता है और ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वर उसको पूछता है कि क्या मैं रात को डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाऊँ। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, यानी आज एक स्पेशल डे है। According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirit of our ancestors today, sir. यानी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जैसे हम श्राद्ध में खीर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, यानी जो पूर्वज होते हैं यानी जो लोग जिनकी डेथ हो गई है तो उनको हम इस तरह से धूप वगैरह देते हैं, इजंट। तो सेम थिंग ही वांट टू से कि आज के दिन हम उनको कुछ स्पेशल बनाकर उनका भोग लगाते हैं। तो ही वॉन्ट टू से दैट थिंग टू महेंद्र। महेंद्र enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वर on his culinary skills. तो वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है उस रात को, वैसे जनरली वो खाना टेस्टी बनाता है और उस दिन तो और अच्छा बनाता है और वो इंजॉय करता है उसके खाने को। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. Garish means बहुत ही भड़कीला, ठीक है। तो he seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural, यानी कि ये तो सब ठीक है कि खाना बनाया वगैरह वो सब, पर वो इन चीज़ों में कम बिलीव करता था महेंद्र, ठीक है। ही डोंट बिलीव इन द सुपरनैचुरल, घोस्ट भूत प्रेत में वो बिलीव नहीं करता था। You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. तो महेंद्र को कहता है कि आपको पता है सर कि जो एंटायर फैक्ट्री एरिया है, पूरा एरिया है जिसके अंदर ये हमारा क्वार्टर भी आता है, किसी समय में यहाँ पर कब्रिस्तान था, ठीक है। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। इट मीन्स इतना अच्छा खाना खाया, ठीक है, और इतना सेटिस्फाई हो गया था अच्छे खाने, और जैसे ही वो ईश्वरन की ये बात सुनता है एकदम से वो शॉक हो जाता है। सडनली वो जैसे कि अपने
सपने से बाहर आ गया हो, इतना अच्छा खाना एंजॉय कर रहा था और ईश्वरन की बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. तो ईश्वर कहता है कि फर्स्ट डे खुद मैंने एक ह्यूमन स्कल यानी खोपड़ी देखी थी लाइंग ऑन द पाथ, रास्ते में पड़ा हुआ। और आज भी अक्सर मैं जब बाहर से घर पे आता हूँ तो मुझे रास्ते में बहुत सारे स्कल्स दिखते हैं। तो you could see here picture is also given कि how he saw the skull here lying on the path. Okay, here he went on to narrate how he sometimes saw ghost at night. अब वो अपनी कहानी फिर से शुरू करता है। वो ये कहना शुरू करता है कि उसने रात को कितनी बार घोस्ट भी देखे हैं, भूत भी देखे। आई एम नॉट ईजीली फ्राइटन्ड बाय दिस थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो। वो कहता है कि मैं ऐसी भूत प्रेत या इन चीज़ों से मैं वैसे डरता नहीं हूँ, मैं बहुत ब्रेव हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन विच अपियर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, इट इज़ एन अगली क्रीचर विद मैटेड हेयर एंड अ श्रिवल्ड फेस लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म। लेकिन एक दिन फुल मून यानी जब पूरी चांदनी रात होती है, तब मैंने आधी रात को अक्सर एक लेडी का घोस्ट देखता हूँ, मैं एक वुमेन का घोस्ट देखता हूँ जो दिखने में बहुत ही डरावनी है। इट इज़ एन अगली क्रीचर, अगली यानी बहुत ही दिखने में बिल्कुल अगली है, नॉट ब्यूटीफुल। मैटेड हेयर यानी उलझे हुए बाल है उसके, श्रिवल्ड फेस यानी उसके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ है, लाइक अ स्केलेटन ऐसे लग रहा था जैसे कोई कंकाल हो, एंड होल्डिंग अ फीटस का मतलब जैसे कि जब बच्चा पेट में ही मर जाता है, ठीक है, पैदा होने से पहले, तो उसको फीटस कहते हैं। तो वो फीटस उसके हाथ में है, ठीक है, उसको लेकर मैंने अक्सर उसको देखा है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। तो महेंद्र जब ये बात सुनता है तो वो डर जाता है, ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन पर, और उसको कहता है कि तुम पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स घोस्ट और स्पिरिट, ऐसी कोई चीज़ें भूत या स्पिरिट्स नहीं होती है। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। तो वो कहता है कि ये सब फालतू की बातें है, तुम्हारी सिर्फ ये सोच है, ठीक है। फिगमेंट मीन्स इमेजिनरी थिंग्स, और हम जो सोचते हैं वो हमको दिखता है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपना पेट चेक कराओ, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तुम्हारा। मे बी योर हेड एज वेल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, और अपना दिमाग भी चेक कराना क्योंकि तुम बहुत ही बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर फॉर द नाइट। महेंद्र अपना रूम वहाँ से उठ जाता है और अपने रूम में जाता है, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। उसने सोचा कि मैं इस तरह से ईश्वरन को डांटूंगा तो वो नाराज़ हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा और कुछ दिनों तक चुप रहेगा। लेकिन बस नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन जब वो सुबह उठ के देखता है तो वो तो उसी तरह से बिल्कुल खुश है, उसके चेहरे पे कोई नाराज़गी नहीं है ईश्वरन के। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टन अनईज। मतलब कि उस दिन के बाद से जब ईश्वरन ने जो स्टार्टिंग में उस औरत का डिस्क्रिप्शन बताया, तब से वो जब भी रात को सोने जाता है तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, उसको नींद नहीं आती है, डर के मारे बेचैनी सी रहती है उसको, ठीक है। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस, पियर्ड मीन्स झांकना। तो रोज रात को वो रात के अंधेरे में झांकता है खिड़की से, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity। हमेशा vicinity मतलब आसपास, आस पड़ोस में, ये रिलैक्स और ये देखने के लिए कि कोई हलचल तो नहीं हो रही है रात के अंधेरे में खिड़की के बाहर। But he could only see a darkness with twinkling lights of the factory miles away। लेकिन उसको तो सिर्फ अंधेरा दिखता है और लाइट्स जो फैक्ट्री की लाइट्स लगती है रात भर जलती है वो दिखती है। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट्स। उसको अक्सर उसकी आदत थी रात को
फुल मून नाइट्स में जो मिल्क वाइट लैंडस्केप मतलब जब चांद की रोशनी से सारी ज़मीन वाइट दिखती है तो उसको बहुत अच्छा लगता था उसको एंजॉय करना। लेकिन जब से ईश्वरन की स्टोरी सुनी है उस फीमेल घोस्ट की, उसने खिड़की के बाहर देखना छोड़ दिया। वन नाइट व्हेन महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एक दिन रात को महेंद्र को किसी की आवाज़ आती है। लो मून का मतलब अजीब सी आवाज़, किसी के कराहने की आवाज़ दर्द के मारे। तो वो आवाज़ उसको विंडो से आती है। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट क्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। पहले तो उसको लगा कोई बिल्ली होगी जो किसी चूहे के पीछे भाग रही होगी। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। यानी वो जो आवाज़ आ रही थी वो कोई गले से निकाल रहा था और बिल्ली ऐसी आवाज़ नहीं निकालती है। He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. तो उसने बहुत कोशिश की, अपने आप को रोका। द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट यानी बाहर उठ के बाहर देखूँ तो सही क्या हो रहा है, ठीक है। बट द वेलिंग बिकेम, पर उसने हिम्मत नहीं की कि वो खिड़की में से उठ के देखे कि एक्चुअली आवाज़ किसकी है। बट द वेलिंग बिकेम मोर लाउडर एंड लेस फिलाइन। मतलब ये कि वो जो आवाज़ है, मॉर्निंग की आवाज़, रोने की आवाज़, वो ज़ोर ज़ोर से बढ़ती जा रही थी, ठीक है। और ये किसी कैट की, फिलाइन यानी अ टाइप ऑफ कैट, तो वो बिल्ली की नहीं थी आवाज़। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, यानी वो अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. वो खिड़की से बाहर झाँक कर देखता है। Not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle. It means दूर उसको एक डार्क क्लाउडली यानी धुंधला सा एक फिगर दिखता है। क्लचिंग अ बंडल यानी उसके हाथ में ऐसे लग रहा था जैसे कुछ पकड़ रखा हो। महेंद्र broke into a cold sweat and fell back on the pillow panting. महेंद्र जब ये देखता है तो वो डर के मारे पसीने छूट जाते हैं उसके और फिर से अपने तकिए के ऊपर जाकर फटाक से बिस्तर पे सो जाता है। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious has played on him. तो जब उसने वो देखा, घास्टली मतलब वेरी फ्राइटनिंग, डरावना, ठीक है, तो वो उसने ये सोचा कि हो सकता है कि वो उसकी माइंड की यानी उसकी सोच की इमेजिनेशन होगी। जिस तरह से हमने जैसे पहले ही कहा कि वॉट एवर वी लिसन, जो भी हम सोचते हैं वो हमारे सामने फिगर बनता है। तो जो ईश्वरन ने कहा वही फिगर हमारे सामने बना। तो उसको भी ऐसे ही लग रहा था कि शायद ये मेरी इमेजिनेशन है। बाय द टाइम ही गॉट अप इन द मॉर्निंग ही हैड अ बाथ एंड केम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट। यानी कि वो सुबह उठता है और फिर से नहा धोकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठता है और रात का जो सारा इंसिडेंट था उसकी दिमाग से वो सारी बातें निकल जाती है। ईश्वरन ग्रीटेड हिम विद लंच पैकेट एंड हिज बैग। यानी जैसे ही महेंद्र अपने काम के लिए जाने लगता है, ईश्वरन उसको लंच बॉक्स देता है उसका और उसका बैग देता है और कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, वेल यू सॉ हर सेल्फ लास्ट नाइट, yourself last night. I came running hearing the sound of mourning that was coming from your room. तो बड़ी मुश्किल से तो वो भूलता है और ईश्वरन उसको कहता है कि सर आपको याद है कि 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक फ़ीमेल घोस्ट की कहानी सुनाई थी और आपने उसके ऊपर बिलीव नहीं किया था, लेकिन मुझे पता है कि आपने खुद ने उसको कल रात को देखा है और वो जो रोने की आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ सुनकर मैं आपकी रूम की तरफ दौड़कर आया था। अ चिल वेंट महेंद्रस स्पाइन। महेंद्रस स्पाइन का मतलब पूरी बॉडी में उसकी एक शिवरिंग सी हो जाती है, यानी वो यूँ सोचता है कि जो उसने देखा वो वाकई में उसी वुमेन का घोस्ट था। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। इसके पहले कि ईश्वरन अपनी बात कंप्लीट करें वो वहाँ से
रवाना हो जाता है. हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. और उसके हाथ में वो पेपर्स लेकर भी जाता है कि अगले दिन उसको ये घर छोड़ना ही है. ही वॉन्ट टू लीव दैट हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. सो दिस वॉज द स्टोरी, and the way he had explained Ishwaran was really very interesting and very real one. Okay, so here we have completed our story.